Good morning everyone. How are you? I hope everyone is fine at home. So class, today I'm just revising the topic 1 because that topic 1 which was based on style we have done on MS Office Word, right? So we need to, as per the CBSE, we need to do it on Open Office Writer. So class, we are going to perform these practicals. The first one is select style categories, select the style from the styles and formatting window. Second is use fill format to apply a style to many different areas quickly. Third is create and update new style from a selection. Fourth is load a style from a template or another document. Fifth is create a new style using drag and drop option. So class, before proceeding, let's revise what is style. So class, styles, if we want to format the text like font style, font size, bold, indentation, etc. So we need to apply one after one, which is very time consuming. For example, here I am open Office Writer. So here I am clicking on it. I'll show you without style what happened. Okay, without style, imagine I am writing hello everyone, how are you? That is the line I have written, right? So click here. अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी आई एम ऑथर मीन्स आई एम अ राइटर, जिसमें मुझे बुक की मैं भी जो वट एवर द आई एम राइटिंग ऑन द कंप्यूटर, उसमें हर पेज की मुझे हेडिंग में यही स्टाइल चाहिए. कौन सा स्टाइल चाहिए? आई वॉन्ट इट हैज़ टू बी ट्रैवलिंग टाइपराइटर, size has to be 16, it has to be bold, italic and underline. मैं चाहती हूँ जब भी मैं अपनी बीइंग अ राइटर वट एवर पेज आई एम गोइंग टू राइट, हेडिंग जो मर्जी हो लेकिन स्टाइल ये होना चाहिए. व्हाट इज द स्टाइल? ट्रैवलिंग टाइपराइटर, 16, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. सो क्लास, मुझे 5 ऑप्शंस क्लिक करने पड़े ना. इमेजिन इन माई बुक 200 पेजेस आर देयर, तो 200 पेजेस में आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस स्टाइल्स अगेन एंड अगेन. डोंट यू थिंक सो? इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो हेयर स्टाइल्स हैज़ कम अप. स्टाइल्स के अप्लाई करने का बेनिफिट यही है कि मैं इन 5 ऑप्शन को एक नाम दे दूंगी. उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे बेनिफिट मिलेगा मुझे हर बार हेडिंग के लिए ये ऑप्शन पे, 5 ऑप्शन पे बार बार आई एम नॉट सपोज टू क्लिक इट अगेन एंड अगेन. मैं सिर्फ एक नाम पे क्लिक करूंगी और ये 5 ऑप्शन अपने आप अप्लाई हो जाएंगे. दैट इज द यूज ऑफ माई स्टाइल. सो लेट्स रीड द डेफिनेशन हियर. If you want to format the text like font style, font size, bold, indentation, etc. So we need to apply one after one, which is very time consuming. So by creating styles, we can add all the formatting option in it and give one name, which saves the time. Styles can be applied to heading, list, titles, paragraph, etc. Okay. So class, let's see the first option. For you people, I have made a word file here, which is हेयर इट इज़ लाइक अ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग. जब भी आप ओपन ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो स्टाइल फॉर्मेटिंग में यही बॉक्स अप्लाई होता है, जिसमें 5 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर देयर. फर्स्ट इज पैराग्राफ स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल एंड लिस्ट स्टाइल. And these two major options, first is fill format mode and the second is new style format, new style from selection, which is divided into 3 parts. New style from selection, update style, load style. इस बटन का नाम भी यही है, new style from selection, so don't be confused. So class, here this is the first point. First point is saying कि list categories, right, and select the style from the style and formatting window. It means class, if you are writing something, ठीक है, मुझे इसके ऊपर हेडिंग अप्लाई करनी है, वो भी बनी बनाई. सो बनी बनाई क्लास हेडिंग नहीं आती कभी कभार, तो उसके लिए यू हैव 2 ऑप्शन. यू कैन गो टू द फॉर्मेट menu bar, select, click on style and formatting, or you can click on the F11 key from the keyboard. So once you click on it, one panel is going to appear. Here this panel we have already discussed class. So class, these are the predefined headings. Are you able to see? Whatever the content you are going to select, if you are selecting this one, so it is going to apply it here only. Can you see the difference? Little bit difference is here. Yes or no everyone? Right? सो क्लास, इमेजिन हेडिंग 1 आपको ये अप्लाई करनी है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए. सो राइट क्लिक, यू कैन क्लिक ऑन मॉडिफाई, right, and you can increase the points on which level you want to increase. For example, I want to increase till 60 or 60, yeah, take it 60. Right, and click on OK. So it would be like this. So whenever you will select, it is like only this one, 60. Okay.
सो अभी हमने कितना इजीली कर लिया ना, कैसे किया, राइट क्लिक, मॉडिफाई। सो आपके पास ये जो सारे ऑप्शन है, ये देखो, हेड, ये स्टाइल भी आ गया, बोल्ड, इटैलिक, अपने आप सब कुछ आ गया। आर यू एबल टू सी एवरीथिंग? सो यू कैन चूज बोल्ड, इटैलिक, वट एवर यू वॉन्ट टू चूज, यू कैन चूज इट, बोल्ड, इटैलिक टुगेदर ऑल्सो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन चूज द साइज ऑल्सो, so that everything is coming automatically, no need to click again and again from here. So that is the use of class style. Acha, you want to make it like a normal one, you can click it again. Here you all want to make it normal, select it and click it. So basically what we have done, first we have selected and then apply it, ठीक है। अगर मुझे ये नहीं करना, मैं चाहती हूँ नहीं यार क्या, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इट देन वी आर अप्लाइंग इट, सो देयर इज अ शॉर्टकट, नो नीड टू सिलेक्ट एनीथिंग. For example, you want heading 10, click here the fill format mode, click here, the one bucket is going to appear, can you see? And now applied, it will come like that, right? So this is my second point. So second point is use fill format to apply a style to many different areas quickly. So what is the difference between a point 1 and point 2? Point 1 में पहले आपको कंटेंट सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, लेकिन सेकंड के अंदर आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं. यू नीड टू क्लिक ऑन फिल फॉर्मेट मोड और उसके बाद जिस भी कंटेंट के ऊपर आपको अपना स्टाइल अप्लाई करना है यू कैन ईजिली अप्लाई इट, ठीक है. ये बकेट हटानी है तो अगेन क्लिक ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट लाइकिंग द हेडिंग, नाउ यू वांट हेडिंग 5, सो अगेन क्लिक हियर, वन bucket will appear, you can again apply on it. Is that okay class? Now come to the third point. So third point is saying create and update new style from a selection. class इसका मतलब है कि पहले आपको स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा, सिर्फ स्टाइल का नेम, बिकॉज दिस create and update new style from a selection happen in 2 ways. पहले आपको स्टाइल का नाम देना पड़ेगा बस, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको उस नाम के अंदर कौन सी डिजाइनिंग ऐड करनी है वो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी. सो दिस इज माय थिंग क्लास, कैन यू सी दिस ऑप्शन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, जिसमें 3 ऑप्शंस हैं. तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन. वन बॉक्स विल अपीयर, इट विल आस्क आपको क्या नाम देना है. सो मैंने यहाँ पर दिया टुडे इज व्हाट, लेट्स टेक इट लाइक Friday 1. You can give any name, I'm just giving like that. So Friday 1 will come like this. Are you able to see the name? अब भाई ये सिर्फ नेम है क्लास, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है. आपको डिज़ाइनिंग ऐड करनी है तो किस तरह की डिज़ाइनिंग आप चाहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम टाइपिंग एनीथिंग, मैं चाहती हूँ जो भी अब मैं करने जा रही हूँ वो डिज़ाइनिंग मेरी ऐड हो जाए. सो हियर आई एम जस्ट चूजिंग बेल एम्प्टी, size I'm choosing 18, italic and underline, right? And the content should come in the center. This is the styling I have applied, ठीक है. अब ये स्टाइलिंग मुझे इसके साथ मैप करनी है, तो आप कंटेंट सिलेक्ट रखेंगे, क्लिक करेंगे जो अभी आपने नाम क्रिएट किया था, बिकॉज आपने तो सिर्फ नाम ही क्रिएट किया था, स्टाइलिंग तो आप बनाई है, अब आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं. तो सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, you need to go in new style from selection option and you need to click on update style, ठीक है. now see style has been updated, है ना. अब whatever you will write, मैं इसको कोई और हेडिंग अप्लाई कर देती हूँ इसके ऊपर. लेट्स से आई एम अप्लाइंग हेडिंग 1. अब आप इस पर फ्राइडे 1 अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं. सी, ठीक है. इमेजिन आप दोबारा से सिलेक्ट कीजिए, आई एम अप्लाइंग हेडिंग अनदर हेडिंग सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस. अब आपको वापस से फ्राइडे 1 अप्लाई करना है तो क्लिक, इट विल कम लाइक दिस, ठीक है. सो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट द नेम ऑफ द स्टाइल, दैट्स इट. आफ्टर दैट आपको वो स्टाइल को मैप करना पड़ेगा नाम से. ओके क्लास, ओके. नाउ come to the next option. Here I have written everything class, all the format, all the options are clearly written over here. Now come to the next, load a style from a template or another document. class इसका मतलब है कि मुझे वो स्टाइल चाहिए जो दूसरे डॉक्यूमेंट में बना हुआ है. सो दिस इज माई करंट डॉक्यूमेंट जिसमें मैं काम कर रही हूँ. सो लेट्स क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, उसमें हम अनदर डॉक्यूमेंट, उसमें हम एक नया स्टाइल बनाएंगे और उस नए स्टाइल को इस करंट फाइल के अंदर हम ऐड करेंगे जिसे हम लोड कहते हैं. सो यू कैन क्लिक ऑन Ctrl+N, इट विल ओपन अ न्यू फाइल, ठीक है.
here I am writing new style. क्या न्यू स्टाइल है क्लास? अगेन आई एम फॉलोइंग द स्टेप बिकॉज मुझे स्टाइल बनाना है. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन. मैंने यहाँ पर स्टाइल दिया स्टाइल 1 फ्रॉम अदर फाइल. ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, इट्स जस्ट अ नेम. ये नेम आ गया यहाँ पर. आप स्टाइल बनाओ. सो व्हाट इज द स्टाइल मैं बना रही हूँ? TW can empty, increasing the size like 16 points, or I can make it bigger so that you can see the difference also, like 24, and I'm making it bold and italic. Okay, that's it. That is only thing I'm making it. Select your style which you have make it, or right click here, new select the style from selection, click on update style. ठीक है, ये अब मैपिंग हो गई. सो मतलब मैं अब ये जो मैंने इस फाइल के अंदर स्टाइल बनाया ना, जिसका नाम क्या है स्टाइल 1 फ्रॉम अदर फाइल, ये मैं अपनी दूसरी फाइल में ऐड करना चाहती हूँ. तो पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं. क्लिक ऑन सेव. आई एम गोइंग टू सेव इट ऑन डेस्कटॉप ओनली. सो हेयर द डेस्कटॉप इज selected already, as you can see that. So here I am giving the name my file 3. Click on save and close this file. So मतलब जो मेरी my file 3 में जिसका स्टाइल का नाम है स्टाइल 1 फ्रॉम अदर फाइल, वो मुझे मैंने क्लोज कर दी. ठीक है ना, वो मुझे मेरी इस फाइल में चाहिए. यहाँ पर तो नहीं आ रहा, आप देख लीजिए. स्टाइल 1 फ्रॉम अदर फाइल, देखो एस की कैटेगरी में तो सिर्फ सिग्नेचर आ रहा है ना, नथिंग एल्स इज कमिंग. So class, now it is time to load the style. So click here. What is the option? New style from selection. उसमें you need to choose the third option, load style. One box will appear. Here you need to click on from file option. From file में where you have saved the file on the desktop with the name myfile3. जैसे ही myfile3 को select करेंगे, अपने आप यहाँ पर आ जाएगा style 1 from other file. Earlier it was not coming ना, now it has been appear. So आप कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, क्लिक द फाइल, कंटेंट विल कम लाइक दिस. ओके, सो दैट इज माय लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट ऑन अनदर डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो क्लास हियर आई हैव डिवाइडेड द स्टेप्स इनटू 2 पार्ट्स बिकॉज सबसे पहले आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें क्रिएट स्टाइल करना है और अपडेट द स्टाइल करना है. तो वही 2 स्टेप्स हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप लोड स्टाइल इन करंट डॉक्यूमेंट में कैसे करेंगे, बिकॉज इन द 2 पॉइंट्स हेयर यू आर क्रिएटिंग अ नेम ऑफ द स्टाइल एंड यू आर मैपिंग द फॉर्मेटिंग विद द स्टाइल. ठीक है, एंड हेयर इट इज द स्टाइल हाउ टू लोड इट इन द करंट डॉक्यूमेंट. द 5th एंड द लास्ट पॉइंट, इट्स वेरी सिंपल. क्रिएट अ न्यू स्टाइल बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप. क्लास अब आप स्टाइल कैसे बना रहे थे? पहले क्लिक कर रहे थे, इस पे जा रहे थे, फिर आप मैप कर रहे थे. वेरी शॉर्टकट. फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम राइटिंग hello, not hello, good morning. This is the option I have written. इसको मैं अभी हेडिंग 1 दे देती हूँ, या कुछ और डिजाइनिंग कर लेते हैं. इसकी डिजाइनिंग मैंने करी क्लास एक्शन मैम शेडो. साइज आई एम टेकिंग इट 20 like this, only that is the designing I am taking. अब ये डिजाइनिंग को मैं कहीं क्लिक नहीं करूंगी, मैं सीधा क्या करूंगी, इस बॉक्स को आई एम जस्ट मेकिंग इट लिटिल बिट क्लोजर. इस डिजाइनिंग को क्लिक करूंगी, विदाउट लिविंग द माउस यहाँ ड्रॉप कर दूंगी, तो अपने आप स्टाइल मान लेगा. तो मैंने लिखा लेटेस्ट स्टाइल 1. क्लिक ऑन ओके. सिंपल, आ गया. तो व्हाट इज द शॉर्टकट? इसमें नाम भी आ गया और स्टाइलिंग भी आ गई. पहले हम क्या कर रहे थे, नेम बना रहे थे, फिर स्टाइल को मैप कर रहे थे बाय क्लिकिंग ऑन अपडेट स्टाइल ऑप्शन. दिस इज अ शॉर्टकट. सी मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई एम क्लिकिंग ऑन लेटेस्ट स्टाइल 1, अपने आप ऐसे ही हो जाएगा. ओके क्लास, सो वी हैव कंप्लीटेड क्लास ऑल दिस 5 पॉइंट्स. सो दिस इज द लुक एंड फील, लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज, fill option, create and update new style. 4th one is how you can load a style from different file, and 5th is a create new style using drag and drop. Okay class, thank you.